Welcome in online class. I hope all of you are well and good at your home. In previous class, we studied classification of matter into pure and impure substances. Then what is impure substances? Pure substances are those in which only one kind of atoms or particles are present. Examples are gold, 24 karat gold and silver. Okay, and what is impure substance? If a substance is made up of two types of, by the combination of two types of particles, then it is called impure substance. Okay, then moving on, pure substance or classification of pure substance. Pure substances are further classified into elements and compounds. Elements and compounds. Now today we are going to study elements. Okay, so elements are those pure chemical substances. Elements are those pure chemical substances in which only one kind of atoms are present. Okay, and examples of elements are hydrogen, oxygen, nitrogen, etc. These are pure chemical substances. और pure chemical substances है, that means these substances cannot be further split into simpler substances under normal conditions. So under normal condition, heat और temperature की conditions में इन substances को further split नहीं किया जा सकता into simpler substances में. Okay. And one more thing, elements are considered as building blocks of all compounds. Okay, elements are considered as building blocks of all compounds present in the universe. So यूनिवर्स में जितने भी आपके कंपाउंड्स प्रेजेंट है उनका बिल्डिंग ब्लॉक कंसीडर किया जाता है किसको? एलिमेंट्स को. एलिमेंट्स आर कंसीडर्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द यूनिवर्स. एलिमेंट्स लाइक calcium, carbon, hydrogen, nitrogen are present in living organism, in plants and elements. तो plants और elements में elements जो होते हैं आपके कैल्शियम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये present होते हैं. इन प्रीवियस क्लास आपने पीरियोडिक टेबल स्टडी करी होगी, तो उसमें आपने 113 जो एलिमेंट्स देखे वो ही आपके क्या है? प्योर केमिकल सब्सटेंसेस है, जिनको फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में स्प्लिट नहीं किया जा सकता अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ हीट, टेम्परेचर एटसेट्रा. तो अंडर नॉर्मल कंडीशन इन एलिमेंट्स को फर्दर स्प्लिट नहीं किया जा सकता, फर्दर उनको तोड़ा ब्रेक नहीं किया जा सकता है. ओके, नाउ मूविंग ऑन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स. अब एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स. द फर्स्ट वन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट्स. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स. First one characteristic of elements is elements are homogeneous in nature. Elements are
homogeneous in nature. होमोजीनियस इन नेचर मीन्स जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे उनमें सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, या वी कैन से ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स आर प्रेजेंट इन एलिमेंट्स. वी कैन represent this as follows. Okay, for suppose this is copper element, then in copper only copper atoms are present, only copper atom, right? So elements are homogeneous in nature. Okay, then moving on the second one, characteristics. Elements cannot be broken into simpler substances by applying heat, light and electricity. Okay, so elements cannot split or be broken into simple substances by applying heat, light and the electricity. So जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं हम उनको सिंपल सब्सटेंसेस में स्प्लिट नहीं कर सकते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज one of the characteristic of element. Then moving on the third characteristics, elements, the smallest unit of elements is atom, which shows all the properties of elements. Okay, so the smallest unit of element is atoms, and it shows all the properties, it shows all the properties of elements. ओके, तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी एलिमेंट की वो क्या होता है, उसका एटम. Here copper is an atom of copper element or it is the smallest unit of any element and it shows all the properties of element. Okay, now moving on the fourth one, characteristics. Elements can exist in free state, atom or in combined state. Okay, so elements can exist in free state. अगर आपका एलिमेंट फ्री स्टेट में है दैट मीन्स वो क्या है, आपका मॉलिक्यूल है, सॉरी एटम है. एंड इन कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट में क्या होगा, एलिमेंट आपका मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करेगा. इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट. अगर फ्री स्टेट में होगा तो वो एलिमेंट क्या होगा, एटम होगा, और इन कंबाइंड स्टेट अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो क्या होगा, आपका मॉलिक्यूल होगा. जैसे आपका हीलियम है, सोडियम है, दीज आर इन फ्री स्टेट. सो दीज आर फ्री स्टेट एंड आर कॉल्ड एटम्स. और कंबाइंड स्टेट में आपका क्या होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, these are in combined state. And fifth one characteristic of elements is elements are exist in solid, liquid and gaseous form. So एलिमेंट्स सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स इज इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. सो
एट रूम टेम्परेचर आपके अधिकतर जो एलिमेंट्स हैं, मोस्ट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। जैसे कि आपका आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, दीज एलिमेंट्स आर solid at room temperature. Okay, then moving on the sixth one characteristic, the two or more type atoms of different elements, two or more atoms combine together to form compounds. Two or more elements atoms sorry two or more atoms of different elements combine to form compound. Okay, the most common compound is water, in which two atoms of hydrogen and one atom of oxygen combine together to form a compound known as water. Okay, so these are the characteristic of elements. Now elements can further classified into metals. Elements can further classified into metals, non-metals and metalloids. राइट, तो जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, 113 एलिमेंट्स हैं, उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. ओके ओके, सो जो मेटल्स हैं, मेटल्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स हैं विच इज मैलिएबल, डक्टाइल एंड दे कैन कंडक्ट electricity. So we can define metals. An element, metal is an element which is malleable, ductile and can conduct electricity, are called metals. ऐसे एलिमेंट जो मैलिएबल हो, डक्टाइल हो और कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड मेटल्स. एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल आर कैल्शियम, कॉपर, निकल, आयरन, सोडियम. कैल्शियम, कॉपर, निकल, iron, sodium, etc. Okay, all these metals are solid at room temperature except mercury. Mercury is liquid at room temperature. In 113 elements known, 80% are metals. जितने भी known elements हैं उसमें से 80% आपके क्या हैं? metals हैं. Okay, and all these metals are present in solid form in room temperature. तो at room temperature पे जितने भी आपके metals हैं वो exist करते हैं in solid form. Okay, then moving on, properties of metals. These properties are important properties of metals. First one property is metals are malleable. Metals are malleable. जो मेटल्स आपके होते हैं वो मैलिएबल होते हैं. जितने भी आप चाहे वो कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, आयरन ले लीजिए आप, वो सारे क्या होते हैं आपके? मैलिएबल होते हैं एक्सेप्ट जिंक, जिंक को छोड़कर. एंड मेटल्स आर डक्टाइल. सेकेंड वन प्रॉपर्टी इज metals are ductile.
बिकॉज ऑफ दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, तो उनको क्या किया जा सकता है, उनको लॉन्ग जो लॉन्ग वायर्स होती हैं उनमें कन्वर्ट किया जा सकता है मेटल्स को, बिकॉज ऑफ देयर मैलिएबिलिटी और डक्टाइल नेचर मेटल्स कैन कन्वर्ट इनटू लॉन्ग वायर्स, तो लॉन्ग वायर्स में उनको कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, देन मूविंग ऑन द थर्ड वन प्रॉपर्टी, मेटल्स आर good conductors of heat and electricity। ओके, जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दैट्स वाई आपके जो मेटल्स होते हैं, जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स बने होते हैं, वो आप उनमें क्या की जाती है, मेटल की कोटिंग की जाती है, बिकॉज दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं, बिकॉज एल्यूमिनियम इज अ मेटल एंड इट इज अ गुड conductor of electricity। Okay, then moving on the fourth one property, metals are generally hard as they exist in solid form, so metals are generally hard except जो आपके सोडियम मेटल्स है। कुछ मेटल्स आपके ऐसे भी हैं जिनको क्या कर सकते हैं, हम इजीली नाइफ से उनमें कट कर सकते हैं, उनको हम कट कर सकते हैं। सो मेटल्स आर जनरली हार्ड बट एक्सेप्ट सोडियम, बिकॉज सोडियम और पोटेशियम मेटल्स ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम इजीली नाइफ से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। दीज आर सॉफ्ट मेटल्स। ओके, देन मूविंग ऑन दी फिफ्थ वन प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, sodium and potassium। Remember that sodium and potassium are soft metals। Okay, metals have, the fifth one property is metals have high density। मेटल्स क्या होती है, उनमें हाई डेंसिटी होती है, जिसकी वजह से उनका वेट क्या होगा, आपका हैवी होगा। और जो आपके फेरस मेटल है वो क्या है, आपका हैवीएस्ट मेटल है। मरकरी और फेरस आर हैवीएस्ट मेटल, और जो आपका लिथियम है वो क्या होता है, आपका लाइटेस्ट मेटल होता है। ओके, देन मूविंग ऑन द सिक्स्थ वन प्रॉपर्टी, डेंसिटी। सिंपली डेंसिटी को हम कैसे कह सकते हैं कि हैवी, जो उसकी हैवीनेस होती है वो मेटल में उसकी डेंसिटी की वजह से होती है। अब हाई डेंसिटी होगी तो ऑब्वियस सी बात है उनमें क्या हो जाएगा, उनका जो वेट होगा वो ज्यादा होगा, और इनमें डेंसिटी की वजह से ही वेट में क्या होगी, वेट ज्यादा या कम होगा। जो लिथियम होता है वो लेस डेंस होता है, इसीलिए उसका वेट क्या है, कम है। और मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स आर, द सिक्स्थ वन प्रॉपर्टी इज मेजॉरिटी ऑफ metals are in solid form or solid state। as you know that metals are, most of the metals are solid at room temperature except mercury। mercury क्या होती है आपकी रूम टेम्परेचर में, लिक्विड स्टेट में होती है, एग्जिस्ट करती है। ओके, देन मूविंग ऑन द सेवन प्रॉपर्टी, metals are lustrous। मेटल्स की जो अपीयरेंस होती है वो लस्ट्रियस होती है। दे हैव शाइनी अपीयरेंस। जैसे आपका गोल्ड है और सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, तो उनकी अपीयरेंस कैसी होती है, लस्ट्रियस होती है, शाइनी अपीयरेंस होती है। ओके, जैसे आपका जो लेड है, लेड ऑल्सो मेटल, लेड भी आपका क्या किया जाता है, वो भी उसमें क्या, उसका यूज हम मिरर में करते हैं बिकॉज ऑफ देयर शाइनी अपीयरेंस। और ऐसी हम कई सारी चीजों को बनाने के लिए जो लाइट डेकोरेशन वगैरह में हम यूज करते हैं, राइट। सो दिस आर लस्ट्रियस इन नेचर। ओके, देन 8 वन इज मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स मेटल्स कैन प्रोड्यूस साउंड। अगर हम किसी भी मेटल्स को अगर हम हल्का सा उस पे
इस तरीके से किसी भी स्टिक को अगर हम उस पर जोर जोर से अगर उस पर बीट करें तो उससे क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। दैट्स वाई आपकी जो गिटार है, वायलिन है, उनकी जो स्ट्रिंग बनाई जाती है वो मेटल मेड होती है और उससे क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। ओके, देन मूविंग ऑन द नाइन्थ प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, metals have high boiling point or we can say high tensile strength. Metals have high tensile strength. हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होने की वजह से ही मेटल्स के आपके ज्यादातर जो आपके ब्रिजेस वगैरह बने होते हैं वो मेटल मेड होते हैं, बिकॉज उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। आपने देखा होगा आयरन का यूज होता है ब्रिज बनाने में, और ऐसी आपके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए मेटल का यूज किया जाता है, बिकॉज दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, then moving on the next one property, metals are usually have silver or gray color. Metals are usually have silver or gray color except gold and copper, because gold is appearing golden और येलो कलर में अपीयर होता है, और जो आपका कॉपर है, कॉपर इज रेडिश ब्राउन इन कलर। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज हमने स्टडी कर ली हैं, जिसमें मेटल्स आपके क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आर लस्टीरियस एंड मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट करते हैं मोस्टली, एंड मेटल्स आर good conductor of heat and electricity. Metals usually have silver and gray color. Metals generally have high tensile strength. So because of the properties of various properties of metals are widely used. तो मेटल्स का उनकी प्रॉपर्टी की वजह से उनका क्या होता है, वाइडली यूज किए जाते हैं इन एवरी फील्ड। जो हर हमारी जितनी भी आपके हर फील्ड में है मेटल्स का यूज किया जाता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे वो आपके होम अप्लायंसेस की बात हो, तो एवरीवेयर आपका मेटल का यूज होता है बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। एज आपको जितने भी आपकी कार हैं, बसेस हैं, जितने भी ब्रिजेस हैं, जितने भी आपकी इंडस्ट्रियल में उनका यूज होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो एवरीवेयर आपका क्या होता है, मेटल का यूज होता है। नाउ मूविंग ऑन नॉन मेटल्स। ओके, एन एलिमेंट which is not malleable, not ductile, and do not conduct heat and electricity are known as non metals. ओके, सो नॉन मेटल्स आपके ऐसे एलिमेंट हैं जो ना ही मेलिएबल है, ना ही डक्टाइल है, और ना ही वे हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, bromine, etc. So these are elements cannot conduct heat and electricity. They are not malleable and not ductile. Okay. So non-metals आपके जो ज्यादातर एलिमेंट्स आपके हैं, 80% एलिमेंट्स आपके मेटल्स हैं, और जो 20% एलिमेंट है वो आपके क्या है, नॉन मेटल्स है। और जो हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन इज द मोस्ट abundant non-metal in the universe and main constituent of sun. जो constituent main constituent है आपका sun का है, sunlight का है, वो क्या है आपका हाइड्रोजन है and it is the most abundant non-metal in the universe. Okay? एंड जो स्टार में एनर्जी है और जो सनलाइट है उसमें ज्यादातर क्या होता है, जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो हाइड्रोजन होता है. एंड नाइट्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंट अबाउट 78% इन द अर्थ एटमॉस्फेयर. अगर यूनिवर्स की बात करें तो हाइड्रोजन आपका मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल है. अगर नाइट्रोजन की बात करें तो वो आपका एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट आपका मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल है. ओके, मूविंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. अगर प्रॉपर्टी की बात करें नॉन मेटल्स की, दे हैव रिवर्स प्रॉपर्टी देन मेटल्स. मेटल्स की जस्ट रिवर्स प्रॉपर्टीज होती हैं नॉन मेटल्स की. एज मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल एंड नॉन डक्टाइल. दे आर ब्रिटल इन नेचर. नॉन मेटल्स आर poor conductor of heat and electricity. Non-metals are soft. Non-metals are low density. Non-metals have not luster and are in dull appearance. Non-metals have high melting and boiling point. Non-metals exist in gaseous state. Or non-metals are non-sonorous. Non-metals have low tensile strength and non-metals are of different colors. जो जितनी भी नॉन आपकी मेटल्स की प्रॉपर्टीज थी उनकी जस्ट रिवर्स प्रॉपर्टीज होती है नॉन मेटल्स में. ओके, और नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो जितने भी आपने मेटल्स की प्रॉपर्टीज लिखी हैं उन्हीं को आप उसमें, अगर आप नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज लिखते हैं तो जस्ट उसके रिवर्स प्रॉपर्टीज आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं. ओके, ऑन मेटेलॉइड्स. ओके, सो the elements which possess some properties of metals, some properties of metals and some of non-metals are called metalloids. तो मेटेलॉइड्स क्या होंगे? ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनमें मेटल्स की और कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होंगी. तो वो क्या कहलाएंगे? मेटेलॉइड्स कहलाएंगे. एग्जाम्पल ऑफ मेटेलॉइड्स आर सिलिकॉन, सिलिकॉन है आपका, बोरॉन है, जर्मेनियम है. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मेटेलॉइड्स. ओके, तो ये क्या है आपके मेटेलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होगी. और जो मेटेलॉइड्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कुछ हद तक कंडक्ट कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई मेटेलॉइड्स आर आल्सो नोन एज सेमी कंडक्टर्स, because they can conduct the heat and the electricity but partially. थोड़ा बहुत ये heat और electricity को conduct कर सकते हैं. That's why these are also known as semi-conductors. Some elements are known as noble gas elements or inert gas. They do not take part in chemical reactions. कुछ ऐसे भी आपके एलिमेंट्स हैं जिनमें नोबल गैस या इनर्ट गैस कहा जाता है और दे डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, और ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं. सो दे आर ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव केमिकली, और ये क्या होते हैं आपके ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव होते हैं. और दीज नोबल गैसेस आर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एटसेट्रा. तो जो भी आप पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट वाली 18th वाला जो आपका रो कॉलम है
उसमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो क्या है आपके नोबल गैसेस हैं. ओके, दे आर केमिकली अनरिएक्टिव. और केमिकली अनरिएक्टिव है तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है. जो भी आपके हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन है, ये एलिमेंट्स आपके क्या कहलाते हैं? नोबल गैसेस कहलाते हैं. और इनर्ट गैसेस भी इन्हें कहा जाता है. ओके, सो टुडे वी डिस्कस्ड pure substances such as metals, non-metals and metalloids and their properties. So that's all for today. I will meet you in my next video. Thank you.